સુરત શહેરના લાલગેટ વિસ્તારમાં સાપુર ખાતે નિકાના મંડપમાં અચાનક મોટો ઊંડો ભૂવો પડતા દોડધામ મચી તંત્ર દ્વારા આખી રાત લાખોના ખર્ચે ખાડો પૂરવાની યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ। મળતી માહિતી પ્રમાણે સુરત શહેરના લાલગેટ વિસ્તારમાં સાપુર મછલીપીટ ગલીમાં લગ્ન પ્રસંગ હતો ત્યારે બહાર લગ્ન મંડપમાં મહેમાનો ખુરશી રાખીને બેસેલા હતા। અચાનક સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ મોટો ઊંડો ભૂવો પડતા ખુરશીઓ પર ઊંડા ખાડામાં પડીને 2-3 લોકો પર પડ્યા। ધીમે ધીમે નાનો ખાડો 20 ફૂટ ઊંડો બન્યો। તાત્કાલિક સ્થાનિકોએ પોલીસ અને ફાયર વિભાગને જાણ કરતા એસએમસીના અધિકારીઓ પર સાથે ફાયરના અધિકારીઓને લાલગેટ પોલીસ આવી ગઈ। તંત્ર દોડતું થયું અને મેટ્રોના અધિકારીઓ પર આવી ગયા। આસપાસના લોકોનો આક્ષેપ છે કે મેટ્રોની કામગીરીને લીધે આવી રીતે મસમોટો ભૂવો પડ્યો છે, જ્યારે મેટ્રોના અધિકારીઓ દ્વારા એસએમસી અધિકારીઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે જેટલું બને એટલું વહેલી તકે આ ખાડો પૂરવામાં આવશે અને નિરાકરણ કરવામાં આવશે। સદનસીબે હાલમાં કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ અહીં આ મોટા ભૂવા માટે એસએમસી કોર્પોરેશન અને મેટ્રોના અધિકારીઓ એકબીજાને જવાબદાર ગણી રહ્યા છે। હાલમાં યુદ્ધના ધોરણે રાત્રે 10 વાગ્યાથી ખાડો પૂરવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। લગ્નમાં આવેલ તમામ મહેમાનોને બીજી જગ્યાએ રહેવા માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને મકાનને ખાલી કરી દેવામાં આવ્યું છે, તેમજ આસપાસ લાલગેટ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યું છે। અહીં લગ્ન પ્રસંગે આવેલા એક સંબંધી અહેમદ પઠાણે આક્ષેપ મૂકતા કહ્યું કે આવી રીતે અચાનક મોટો ભૂવો પડ્યો તેના માટે મેટ્રોની કામગીરી જવાબદાર છે। ભૂવામાં પાણી વહેવા લાગ્યું છે, ડ્રેનેજ લાઇન તૂટી ગઈ છે। જોકે કોઈ પણ કામ માટે તંત્રને અપીલ કરીએ છીએ, અરજીઓ કરીએ છીએ ત્યારે અઠવાડિયાઓ અને મહિનાઓ લાગી જાય છે, પછી કામગીરી થાય છે, પણ આટલો મોટો ભૂવો રાત્રે 10 વાગ્યાથી જ પૂરવાનું ચાલુ કરી દીધું। તેમાં કોઈના કોઈને છાવરવામાં આવી રહ્યું છે। લાખોના ખર્ચે આ ભૂવો પૂરવાની કામગીરી થઈ રહી છે। આના માટે કોઈની પણ મિલીભગત છે યા પછી આના માટે કોઈ પણ જવાબદાર અધિકારી છે? આટલી ઝડપથી યુદ્ધના ધોરણે કામગીરીથી કોને બચાવવામાં આવી રહ્યું છે? વધુમાં બીજા આરોપ મુકતા કહ્યું કે જુઓ વિડીયોમાં। मेरा नाम अहमद पठान है। आज कौन सी घटना कहाँ पे बनी? ये शाहपुर विस्तार में पटनी हॉल के पास में जो है ये घटना बनी है। तकरीबन 6:30 से 7 के बीच में हो रहा था, तो मेरी वाइफ का फोन आया। यहाँ पर शादी का प्रोग्राम चालू था, आज मेरे भतीजे का निकाह था, बारात जाना था, तो मैं किसी काम से बाहर था। तो मेरी वाइफ का फोन आया मेरे पास में कि यहाँ पर जो है ना अपने घर के सामने अचानक से खड्डा हो रहा है। तो मेरे को क्या खड्डा हो रहा है, तो उसने मुझे फोटो भेजा एक मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, और उसने मुझे दिखाया। ये तकरीबन आप टाइम देख सकते हो, इसका टाइम कितना हुआ है, 6:40 पर। ये पूरा एड्रेस उसने मुझे बताया। तो यहाँ पर जो मुझे लगा कि मतलब हुआ हो गया है, तो मैंने फौरन जो है वहाँ पर कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, सेंट्रल जोन के वहाँ पर अधिकारी को सूचन दिया। फिर जो अधिकारी और लगता सबको मैंने सूचन दिया, तो कॉरपोरेशन की तरफ से अधिकारी फौरन आ गए। यहाँ पर जो एसएमसी के कर्मचारी अधिकारी होते हैं लोग आ गए, और साथ साथ में फायर ब्रिगेड के लोग भी आए, और उन लोगों ने भी जो है कॉर्डन किया, और बहुत ही सेफ्टी से जो है इन्होंने हमको हर तरीके से बचाया। बड़ी दुर्घटना होने से फिर भी जब तक उन लोग आते रहे, 1 घंटे के अंदर भुआ देखो कम से कम 30 फुट गहरा हो गया, और कम से कम 4 से 5 मीटर का दायरा हो गया वो खड्डे होने में, और आजू बाजू के अंदर भी सब लोगों का भय का माहौल पूरा बना हुआ है। ऐसा पहले कभी हुआ है? ऐसा पहला इसके पहले और भी हुआ है। हमारे कुछ दिन पहले यहाँ इस घर से कुछ दिन आगे वहाँ पर जो है वहाँ पर भी इस तरह भुआ हुआ था। और सूरत शहर के अंदर बहुत सी ऐसी जगहों पे हमको सुनने आता है, मगर हमने अपनी आंखों से यहाँ पर 2 से 3 जगह पे देखा हुआ है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर जैसा वहाँ पर भी ऐसे ही भुआ हुआ था। फिर ये मेट्रो वाले आए, कॉर्पोरेशन को जानकारी दिया, तो मेट्रो वाले आके भर गए। और मेट्रो वाले को बोलो डायरेक्ट, वो कभी संकलन में नहीं आते हैं और ना कोई सहयोग करते हैं, और उनके अधिकारी आते हैं तो वो एक ही बात करते हैं कि भाई ये तो हमारे काम में आता नहीं, एसएमसी के काम में आता है, ये हमारे स्कोप में है ही नहीं, इस तरह बोल के जो है ना लोग पल्ला झाड़ देते हैं। वो हमसे मिलना भी नहीं चाहते हैं स्थानीय लोगों से। आज भी मेट्रो के अधिकारी आए थे? मेट्रो के अधिकारी तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब इसमें कैसा है कि मेट्रो के जो भी अधिकारी आए थे, इसके अंदर मेन अधिकारी किससे बात कर रहा हूँ समझ में आता नहीं। हमने सब जिसने से बात किया तो बोलते वो सर से बात करो, हम उससे बात करें तो बोलते वो सर से बात करो, हम बोलते जिसको ये सर से बात करो, वो सर से बात करो, लोग सिर्फ इस तरह ही बात किया करते। और हमारे घर में अलग अलग जगह से अलग अलग राज्यों से हमारे पास में मेहमान आए हुए थे, लगभग 200 से 300 मेहमान थे। अभी आप घर में देख सकते हो घर पूरा खाली है, और मेरे घर के अंदर मेरे भतीजे का शादी है। अभी देखो हमारी ऐसी कैसी मजबूरी कि मैं घर की अपनी रखवाली करूँ। अगर देखा जाए तो मेरा बच्चा, मेरी बीवी, सब मेरे रिश्तेदार वहाँ पर है, और यहाँ पर प्रॉपर काम हो जाए, और मैं अपने घर की सब ताले खुले हुए हैं, और सब मेहमान बाहर से आए, सबके सामान यहाँ पर, तो मैं घर की रखवाली यहाँ पर कर रहा हूँ। और मेट्रो वाले की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब आता नहीं है। मगर एसएमसी के अधिकारियों का शुक्रगुजार हो कि वो हमारे एक बार फोन करने पे फौरन वो आगे, उन लोग कोऑर्डिनेट किया पूरा, और कॉर्डन किया, और फायर के भी लोग आ गए, और फायर के लोगों ने भी सेफ्टी की, और जो यहाँ पर हकीकत थी वो बताया। और हमारे बाजू वाले को उनको लगा कि भाई खाली करना है तो खाली, और हम लोगों को बोला कि खाली करके तुम
खाली तो कर दिया, हमारे घर में जो इतने मेहमान आए हुए हैं, लगभग 150 से 200 लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? सब परप्रांतीय, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, कोई मुंबई से आया, कोई हैदराबाद से, कोई यूपी से, कोई अलग अलग जगह से आया, तो लोग कहाँ पे जाएंगे रहने के लिए? सब लोगों को रहने के लिए जगह आप लोगों को भी सगवड़ की एसएमसी की तरफ से नहीं, सगवड़ एसएमसी की तरफ से कोई सगवड़ करने में नहीं आया। अभी देखो, अचानक सा ये हो गया, तो हमको पता नहीं था कैसा होने वाला था, किसकी सगवड़ कर लेता। इतने सारे लोगों का पॉसिबल तो है नहीं एक साथ में करके देंगे। और मेट्रो की तरफ से भी अधिकारियों ने सामने से कहा था कि भाई आप परेशान मत हो, आपकी पब्लिक को लिए हम लोग रहने के लिए जगह देंगे, मगर अभी तक का उन लोगों ने कोई संतोषजनक जवाब हमको दिया नहीं है कि यहाँ पर इस तरह होता है। आपको क्या लगता है इसमें कुछ यहाँ के स्थानिक लोग बोल रहे हैं कुदरती हादसा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेट्रो की जवाबदारी है, कुछ लोग कॉर्पोरेशन को बोल रहे हैं, आप किसको बोल रहे हैं? देखो, कॉर्पोरेशन की जवाबदारी तो जो एसएमसी में है, तो कॉर्पोरेशन तो इसके अंदर आएगा ही। कॉर्पोरेशन के अंदर मैं एक चीज तो एक्सलेंट मानूंगा कि मैंने कंट्रोल रूम पे फोन किया, वहां से फौरन अधिकारी वहां पर आ गए, जो जो उनकी टीम से वो आ गए, फायर वाले भी आ गए, और मेट्रो वाले को कांटेक्ट कर करके लगभग वो 2 से 3 घंटे के बाद में आए। वो एक आता देख के चले जाता, दूसरा आता, तीसरा देख के चले जाता, एक साथ में कोई आया ना। अभी भी आप देखो, कंक्रीटिंग यहाँ पर हो रहा है, मगर कोई अधिकारी यहाँ पर फिलहाल स्थल के ऊपर नहीं है। अब ये कैसे कास्टिंग करके चले जाएगा, कंक्रीट डाल के चले जाएगा, अब इसमें ड्रेनेज का पाइप बंद हो जाएगा, इसमें पानी पीने का पाइप बंद हो जाएगा, या दूसरी कोई आफत आएगी, तो उनको उससे कुछ पड़ी नहीं है। मेट्रो वाले इतनी लापरवाह है। अच्छा, इसमें ड्रेनेज लाइन भी लीकेज हो रही है? ड्रेनेज लाइन लीकेज है, ड्रेनेज लाइन तो पूरी तरह टूट गया हुआ है, और पानी जो कॉर्पोरेशन वाले हैं, कुछ अपने टेक्निक की वजह से पानी वहाँ पे रोका हुआ है, और पानी का पाइप भी ऊपर से गया हुआ है, उसमें भी डैमेज हो सकता है कंक्रीटिंग डालने की वजह से। मगर क्या लगता है आपको, एक सुबह तक ये खाना ये पूरा हुआ बंद हो जाएगा, खत्म हो अभी जाएगा? देखो, इसमें ऐसा है कि गाड़ियां तो आ रही है, लगभग अभी तक का 8 से 10 गाड़ी इन लोगों ने लाके डालना चालू कर दिया है, मगर कंडीशन देखने के हिसाब से लग नहीं रहा कि अभी भी होगा, क्योंकि अभी भी आधे से ज्यादा खड्डा है इसके अंदर। सर, तुम्हारा नाम? जी, मेरा नाम सैयद मजहर है। आज तो यहाँ पे जो घटना बनी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना बनी है, सबसे पहले तो बहुत गंभीरता की बात है कि हमारे देश में, हमारे शहर में हर रोज इस तरह की कुछ ना कुछ घटनाएं बनती जा रही है। बीजेपी के राज में एक तरफ हमारा जो शहर है वो स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी कहा जाता है, और हमारा जो शहर है वो दिन ब दिन प्रगति की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा हमको बहुत सी जगहों पर दिखाया जाता है। लेकिन हमारे शहर की जो असलियत है वो आपके सामने है कि इस तरह से 30-30 फीट के गड्ढे ऐसी जगहों पे पड़ जाना जहां पर तादाद के अंदर लोग रहते हैं, आबादी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और इस तरह के विस्तारों के अंदर ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा आप देख सकते हैं कि एक कोने से पड़ा है, तो किसी तरह की जान हानि नहीं हुई। यही गड्ढा अगर 2-4 फीट आगे पीछे अगर हो जाता था तो कोई बिल्डिंग गिर सकती थी, किसी के परिवार तबाह हो सकते थे, और कई लोग मौत के घाट उतर सकते थे। तो ये बीजेपी की बहुत ही बड़ी निष्फलता है कि इस तरह के काम होते रहते हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की और कॉन्ट्रैक्टरों की मिली भगत है कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेबें भरते रहते हैं और सही तरह से काम नहीं करते। सही तरह से काम नहीं करने की वजह से इस तरह के जो काम है वो हो रहे हैं। मेट्रो के जो काम हो रहे हैं, मेट्रो से कई सारी मट्टी को जो है हटाया जा रहा है, तो ये मट्टी सरकने के कारण ये काम हो रहे हैं। अधिकारियों से भी हमने कुछ बात की तो वो बता रहे हैं कि ये हमारे विभाग में नहीं आता, ये हमारे अंडर में नहीं आता। वो एसएमसी पर ढोल रहे हैं। एसएमसी से बात की, एसएमसी बोल रहे हैं कि अगर हमारी वजह से टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होता तो गड्ढा छोटा सा होता, इतना बड़ा नहीं होता। यानी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर ढोल रहे हैं, लेकिन इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने से और लोगों के ऊपर ढोलने से जान हानि होती नहीं बच सकती। ये देश के नागरिकों की जान बहुत कीमती है। इस तरह के करोड़ों रुपए करप्शन के जरिए आप कमा सकते हो, लेकिन किसी की जान अगर चली गई तो वो जान आप दोबारा लौटा नहीं सकते हो। एसएमसी ने और मेट्रो के अधिकारी ने कहा था कि जितना बनेगा इतना हम ये को जल्द से जल्द हम बोलेंगे, खत्म कर देंगे, इनका काम रिपेयर कर देंगे, और आज रात से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया, तो ये तो अच्छा ही काम किया है ना? मैडम, आपको जैसे पता होगा कि आज एक रास्ते के ऊपर नॉर्मल से अगर हमारे को कोई अगर कारपेंटिंग करना होता है, अगर एक रोड के ऊपर कुछ नॉर्मल से गड्ढे जो बाइक्स के अंदर प्रॉब्लम देते चलाने में, उस गड्ढे को चलाने के लिए हम आज अर्जी देते तो महीनों तक काम नहीं होता। ये कहीं ना कहीं इनकी निष्फलता है और इनकी कोई ना कोई मिली भगत को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो आधी रात को इतनी तेजी से काम हो रहा है। बाकी आप भी समझदार हो, जनता भी समझदार है कि सरकारी काम किस तरह से होते हैं। और अभी इन्होंने जो काम किए, एक तरफ बताया जा रहा है कि हमारे अंदर नहीं आ रहा है, हमारे अंडर में नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मेट्रो के लोग ही मतलब इसको पूर रहे हैं। अभी मैंने एक अधिकारी से पता किया तो उनकी तरफ से पता चला कि ये 40 से 50 लाख रुपए का जो ये भुआ है वो उनको पड़ गया है, और 40 से 50 लाख का उनका नुकसान हो गया है। तो अगर इसके जिम्मेदार आप नहीं है तो आप इतना सारा पैसा अपनी जेब से क्यों दे रहे हैं, सोचने वाली बात है। ये भुआ भूलने की कामगिरी कब चालू हुई? ये भुआ पूरने की कामगिरी बस ये समझिए कि घटना के बाद जैसे ही सोशल मीडिया वाले आने लगे, उसके बाद इन्होंने जो है आधे ही घंटे के अंदर ये काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये 7:30-8 बजे से काम शुरू हुए और अभी आप देख सकते हैं रात के 12 बज गए,
तब तक भी ये भुआ अभी जो है वो 30% भी कवर नहीं हुआ, ये शायद सुबह तक हो सकता है। क्या लगता है आपको कल तक ये बंद हो जाएगा? जी, ये भुआ तो हो सकता है, मतलब इतनी सारी जो गाड़ियाँ आ रही है, पीसीसी इसमें डाला जा रहा है, तो ये भुआ तो जो कल तक है वो हो ही जाना चाहिए, कल सुबह तक नहीं तो कल दोपहर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये भुआ भर जाएगा, सवाल ये है कि ऐसे भुए पड़ते क्यों हैं? लोगों की जान के साथ ऐसे खिलवाड़ होते क्यों हैं? लास्ट में तंत्र को क्या कहोगे इस पूरी घटना के बारे में, किसको जवाबदार गिनोगे? अगर तंत्र हो या बीजेपी सरकार हो या मेट्रो हो, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है। ये गवर्नमेंट जो हमसे जो हमको प्रोवाइड कर रही है, हमको मेट्रो प्रोवाइड करेंगे या हमको जो कोई भी हमको जो सुविधाएं प्राप्त होती है, ये किसी के घर के पैसों से हमको प्रोवाइड नहीं होती। ये जनता से लिए हुए टैक्स, जनता के ऊपर डाले हुए तगड़े टैक्स, उस टैक्स के पैसों से आप जनता को ये फैसिलिटीज देते हैं। तो इस फैसिलिटीज के अंदर कोई भी काहेली नहीं चलेगी, इसमें गैर जिम्मेदारी मत करिए। जिंदगी सबसे बेहतरीन तोहफा है।